السلام علیکم ناظرین کشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو خبرن ہند تفصیل زاننے برو اخ نظر چن خاص خبرن پہ جموں کشمیر مز ملٹنسی مختلف کاروٲیی جاری مینڈر پنچس مز تازہ کاروٲیی ملٹنٹ سنز پراپرٹی سیز ہندوستان تو بنگلہ دیش ہمیشہ دوستانہ ماحولس مز کام کران رودمت تعلقات مزید بہتر بناونس حوالہ کوشش سٹھا ضروری ڈاکٹر فاروق عبداللہ آگاہ روح اللہ تو نیشنل کانفرنس پارٹی درمیان کان تضاد نوجوان لیڈر چھ پریت کان کام جلدی انزرین یژھان چودھری محمد رمضان تلہ کامہ ست وابستہ دستکار حالاتن ہند شکار شہر خاص کیو دستکارو طرف سرکارس فریاد تو وادی ہندن دویمن بالائی علاقن سان گلمرگ مز شین پیون جاری تازہ شین پین ست گلمرگ مز موجود سیاح سٹھوئی خوش تو ناظرین پیش خبرن ہند تفصیل جموں کشمیر مز یت ملٹنسی خلاف کاروٲیی بدستور جاری تو آز تام کئیہن لوکن ہز پراپرٹی امہ حوالہ سیز کرنے آئی تت مینڈر پنچس مز تازہ کاروٲیی پولیس طرف عملہ مز انہ آمت یتھ دوران اکس ملٹنٹ سنز پراپرٹی سیز کرنے آئی پولیس بیانس مز ونہ آمت ز نارا مینڈرس مز آز رفیق نائی عروف سلطان ناو کس ملٹنٹ سنز پراپرٹی سیز کرنے آمز یس زن سرحد اپار پہ جموں کشمیر ہند ماحول خراب کرنس تو ملٹنسی گوڑ برنس مز اہم رول ادا کران چھ نیشنل کانفرنس پارٹی ہند صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ ہندوستان تو بنگلہ دیش کن تعلقات حوالہ کات کران وونمت ز بنگلہ دیش تو ہندوستانس درمیان ہمیشہ دوستانہ ماحول رودمت تو یہ برو پکناؤن باپت کوشش کرن سٹھا ضروری مجھے خوشی ہے کہ ہمارے جو ہیں فارن منسٹر وہ وہاں گئے اور اس میں شرکت کی. اچھا ہے، بنگلہ دیش ہمارا پرانا دوست ہے اور ہمیں اس دوستی کو بہت آگے بڑھانا ہے، مضبوطی دینی ہے. جناب، یہ ہماری قسمت ہے. کچھ لوگ ہیں جن کا مقصد ہی کچھ اور ہے، وہ ہٹلر کی ان چیزوں میں چل رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہٹلر کا نظام یہاں پہ شروع ہو. ہٹلر غائب ہو گیا، خود اپنے آپ کو گولی مار دی. انشاءاللہ وہاں نازیزم ختم ہو گیا. یہاں بھی آئے گا وقت جب یہ جو کٹر پنتھی ہے. راجیہ سبھا ممبر تو نیشنل کانفرنس پارٹی سینئر لیڈر چودھری محمد رمضان آگاہ روح اللہ حوالہ پرسنہ آمتس سوالس جواب دیوان وونمت ز پارٹی تو تمس درمیان چھن کانٛہہ تہ تضاد بلکہ آگاہ روح اللہ نوجوان لیڈر سہ یژھان ز پریت کانٛہہ معاملہ گژھِ جلدی انزراونہ یُن. رفٹ نہیں ہے، کوئی رفٹ نہیں ہے، یہ اپروچ کی بات ہے. آگاہ رولہ صاحب خلاف نہیں ہے، ان کا اپروچ جو ہے وہ اپروچ میں فرق ہے. مقصد تو ایک ہی ہے، مقصد ایک ہی ہے، مقصد اس کا بھی یہی ہے، ہمارا بھی وہی ہے مقصد، لیکن اپروچ کی فرق ہے. آگاہ روح صاحب عمر میں ابھی بہت چھوٹے ہیں، ینگ ہے، نوجوان خون ہے اس کے رگوں میں، گرم گرم خون ہے. وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ ترنت ہو جائے، لیکن آپ کو خود معلوم ہے کہ سیاست میں کیسے کیا معاملات ہوتے ہیں، کون سی دشواریاں ہوتی ہیں. تو باقی اپروچ ہندوارس مز آز پیپلز کانفرنس پارٹی طرف پریس کانفرنس سانز کرنے آمت یتھ دوران پارٹی سربراہ سجاد غنی لونن عمر سرکارش نقطہ چینی کران وون ز یدوے انتخابن دوران نیشنل کانفرنس پارٹی طرف لوکن ست کیا وعدہ کرنے آئی، تاہم چھن سرکارس مز ین پتہ اخ وعدہ پورہ کرنے آمت یم ست عام لوک مشکلن مز ہنہ آئی. گورنمنٹ کے وعدے سے 200 یونٹ بجلی کہیں نہیں کہ مفت دیں.
मुफ्त के बजाय जो बिल पहले आता था नॉन मीटर एरिया, आज उसका 50% उसमें इजाफा कर दिया। 12 सिलेंडर कहीं नहीं, फिर बोला 5,000 देंगे बेरोजगारों को, कहीं नहीं। 1 लाख नई नौकरियां देंगे, कहीं नहीं। 1 लाख नौकरियों में भी बोले कि अब नया बिजनेस आ गया है आउटसोर्स का, कि गवर्नमेंट जॉब्स को प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है कि आप बंदूक को लाइए। वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, बिजनेस है, कि ये गवर्नमेंट जॉब्स को ही कन्वर्ट कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। तो जितने भी वादे थे वो सबके सब धरे रहे, कोई वादा पूरा नहीं हुआ, सबका सब झूठ है। ये टोटल फेल सरकार है, ना सरकार दिख रही, सिर्फ ट्रांसफर पर है सारी सरकार। डेली वेजर्स हैं, झूठ, सब झूठ। और हकीकत ये कि इनने झूठ पर वोट लिए, इन्हें लोगों को धोखा दिया। ये आज आकर बोले कि हाउ डू दे कॉम्पनसेट द पीपल, सब झूठ पर। क्या इनको नहीं मालूम? बच्चे हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई एक्सपीरियंस वाला है वो फारूक साहब है। फारूक साहब को नहीं मालूम था यहाँ ड्यूटी है जब ये मैनिफेस्टो बना। उमर साहब को नहीं मालूम था रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट उन्हें नहीं पढ़ा था। मैं ताकीद करूंगा हाथ जोड़कर सब पॉलिटिशियन से कि जंप ना मारे, इसको पहले पढ़े। दो चीजें, एक है 40% जो ओपन मेरिट, दैट इज वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, कि 40% ओपन मेरिट है जबकि पूरे हिंदुस्तान में 50%। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो बड़ा प्रॉब्लम है कि जो 60% रिजर्व है, सुनिए मेरी बात, 60% रिजर्व है, 74% जम्मू से है। कि अगर 60 बच्चे रिजर्व कैटेगरी में सिलेक्ट होते हैं, 46 to 47 जम्मू से आएंगे, 13 या 14 कश्मीर से आएंगे। जो इन्होंने रिकमेंडेशंस भेजी है, जो ये निकलते हैं रोज कि भाई हम ये एजुकेशन करेंगे, जो रिकमेंडेशंस उन्होंने भेजी है एलजी साहब के पास, वो किसी काम की नहीं है, वो रिजेक्ट है। उससे कुछ नहीं होगा, ये नहीं बढ़ेगा। इस वक्त आपकी पॉपुलेशन 60% से ज्यादा है कश्मीरियों की, और जो आपकी इस वक्त नेट है 28 से 32% जो है आपके बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। सो यहां कोई पॉलिटिशियन उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। सूबाई कमिश्नर कश्मीरन वरी 2015 हवाले कत करान वोनमुत यदवे अत वरियस दौरान वादी कशीर मज के नास्तरास वाक़ पेश यन सयाहती शोबस सठा मुतासर सपुद, ताहम वमेद वरी 2016 मज रोजन हालात बेहतर युद्ध जन सयाहती शोबस पोछर दिनस अलाव आम लूकन राहत वातनानस मज आसानी सपदे। 2025 में जैसे हमारे जो बहुत सारे जो हमारे टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स थे, हमारे लोकल बिजनेसमैन थे, हमारे बहुत सारे हमारे जो स्थानीय लोकल्स हैं वो परेशान रहे क्योंकि टूरिज़्म ने एक हिट लिया और बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। तो अब मैं समझता हूँ नए साल पे जो बर्फ़बारी हमारी पिछले कुछ दिनों में हमें गुलमर्ग में, सोनमर्ग में देखने को मिली, पहलगाम में टूरिस्ट का जो है तांता बढ़ रहा है, तो मैं समझता हूँ नया साल हमारे लिए बड़ी खुशखबरी लेके आ रहा है और हम आने वाले इस 2026 में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट हमारे कश्मीर में आएँ। तो उसके लिए मैं आपकी तरफ से भी और हम सब की तरफ से हमारे टूरिस्ट का वेलकम करना चाहूँगा। और एडमिनिस्ट्रेशन की हमेशा ये कोशिश रहती है कि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं कश्मीर में, उन सभी को साथ लेकर के हम आगे बढ़ें। और डेवलपमेंट के बहुत सारे जो हैं प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ सेक्टर्स में चल रहे हैं। मैं PWD की बात करूँ तो बहुत सारे एक्सटेंसिव, आपने देखा होगा हाल ही में कुछ ब्रिजेस का उद्घाटन हुआ, चाहे वो नूरजहाँ ब्रिज हो, चाहे हमारा सरंत नगर वाला फ्लाईओवर हो, जिससे श्रीनगर में काफ़ी बेहतरी हुई है। हमारे रिंग रोड के प्रोजेक्ट्स बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। श्रीनगर बारामूला उड़ी के हाईवे के ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। एम्स जो है हमारा अवंतीपुरा, वो हमारी इंशाल्लाह कोशिश है कि इस साल वो भी हमारा कंप्लीट हो, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी राहत हमारे साउथ कश्मीर के इलाके को और पूरे कश्मीर को मैं समझता हूँ देगा। और उसी तरीके से हमारे जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हमारा पावर में RDSS के बड़े इंपॉर्टेंट काम चल रहे हैं। और इस साल भी विंटर्स में बड़ी अच्छी खुशखबरी रही है कि बहुत सारे इलाकों में श्रीनगर के 24/7 पावर सप्लाई अवेलेबल रही है, जहाँ जहाँ भी मीटरिंग हमारा जो डिपार्टमेंट है PDD कंप्लीट कर पाया है। और बहुत सारे लोगों का हमें सहयोग भी मिला है। मैं उनका शुक्रिया भी करना चाहूँगा कि इस प्रोग्रेसिव स्टेप्स में हम आगे बढ़ रहे हैं। PM सूर्य घर जो मुफ्त बिजली योजना है, उसके तहत भी बहुत से हमारे घरों को फ़ायदा मिला है, जहाँ पर जो सोलर पावर से उनके जो बिजली के बिल हैं उनमें कटौती आई है अच्छी खासी, और बड़ा अच्छा फीडबैक हमें और बहुत अच्छा सपोर्ट मैं कहूँगा हमें लोगों से मिला है। तो कुल मिलाकर के सभी सेक्टर्स के अंदर बहुत सारे जो हैं डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाया जा रहा है।
हमारा मिशन युवा, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे जो यूथ हैं जो अपना एंटरप्रेन्योरल सेटअप्स लगाना चाहते हैं, नए जो वेंचर्स करना चाहते हैं, उनको बड़ी हौसला अफजाई उनकी मिशन युवा की जानिब से की जा रही है और लोन्स उनको उनके डोर स्टेप्स पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनकी काउंसलिंग की जा रही है ताकि वो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका फ़ायदा ले सकें, भरपूर फ़ायदा लें। तो इस तरीके से सभी जो सेक्टर्स हैं, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको साथ में लेकर के गवर्नमेंट की एक कोशिश है, एक विजन है ऑनरेबल एलजी साहब का, तो उन्हीं की डायरेक्शंस के ऊपर हम काम करते हैं। और हमारे टूरिस्ट के लिए भी कि सिक्योरिटी ग्रिड कैसे स्ट्रेंथन हो, उसके ऊपर भी पुलिस की तरफ से, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज की तरफ से लगातार काम चलता रहता है। और मैं सभी का सपोर्ट भी चाहूँगा, उम्मीद भी करूँगा कि सभी का सपोर्ट जैसे हमें मिलता रहे, आगे भी मिलता रहे, और सभी को साथ लेकर के हम इस 2026 में इसी तरीके से। नाजरीन, कोशिश खबरनाम जारी, इतने तिजारती वक्फ। नाजरीन, खबरनामस में तुम दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। वादी हजन अत कामन मज तिल पन अलग मुकाम थावन तो पत वत पे अत काम सास वाद लूक वबस्त सपदित अन चोर जेनन। तिल काम वबस्त लूकन ये सुचन सूर खनित अछन हुंद गाश सोरन युद्ध जन पलवन हिंस तिस जेबई सपदि यम ग्राहक सठै मुतासर सपदि। ताहम मौजूदा दौरस मज अत वबस्त लूकन सठा मुश्किल व्यतरन पेवान। पेश अहम हवाले शहर खास पे नाटिका भट्ट सुन ये रिपोर्ट। खानकाए मौला सिर्फ रूहानी मरकज नहीं, ये उन फनों का भी मरकज है जो कश्मीर की पहचान बन गए। मैं हूं नातिका भट्ट और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद रफी के साथ आज गुलिस्तान टीवी पर हम बात करेंगे कश्मीर के उस हुनर की जो सोने जैसे धागे से रिवायत बुनता है, तिला वर्क। अस गई लगभग 50 वरी ये वानस पे बिहित कस वरी लगभग गई 50 वरी 50 ये साड़ बज ये काम करान। यह ओनमुत असली हजर शाह हमदान योर यह कार तमी अन वनर योर यह तम सुंद हरात ये वनकस सोरी। तिला वर्क कश्मीर में शाही हमदान के दौर से जोड़ा जाता है। यही वो हुनर था जिसने कश्मीर को अपने पैरों पर खड़ा किया। वनकस लुक नबर पे यह अमरीका बरतानिया फ्रांस तिमन पसंद यह कार क्या वनकस वनकस फेरन वेरन सुवान दपान गोस बनवित मगर ये कड़गर बनावन खतर तैयार कह बना बिचारन दस्ती कह ये लगान अस निश रेत वाद ये सात नफर कम अगर कह अन तथ लगान रेत वाद लुक करान करान कोर तरान अजि कोर तरान नेची तरान मगर ज्यादा कड़गर ये पे क्या दपान पे खास हासिल कह। आज भी खानका के आसपास ये हुनर जिंदा है, लेकिन सस्ती मशीन एम्ब्रॉयडरी इस रिवायत के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। वजूहत बने तिमन दपान ये पे खास पोस बनान कह या बिजाती कोर्मुत अल्लाह तालान करो यह सहल या यमो त्रोमुत गवर्नमेंटन अम्पोरम क्या त्रोमुत गवर्नमेंट अम्पोरमस दिवान तिम शाल वाल बनावान तिम तत कनान वो गवर्नमेंट अगर कुन दी तवजो पको ब्रोट तेल पको लुक त्रोट क्या तिम लकट वनकस अक्सर तालीम पारान लुक तिम यसान पत ये कार कर कह सात वो तिम हावन तुम इत पे कर तालीम पढ़ रुपये 10 जीनो इत पे तिम कर गवर्नमेंट तवजो दी कुन तेल बनान ये गवर्नमेंट तवजो ये दुत गवर्नमेंटन जहन तवजो ये कारस इथे पे कोरुक ये कालबाफ कारन सह खत्म डून हेच सह खत्म पेपर माशी सह खत्म तथ दुत यमो तवजो कह कस बेस कुन दुत नस ना कस बेस कुन। तिला वर्क हजारों घरों की रोजी रोटी भी है। खानकाए मौला के आसपास ये दुकान सिर्फ बाजार नहीं, ये कश्मीर की जिंदा विरासत है।
तो देखा आपने कि किस तरीके से अगर हम तिल्ला वर्क की बात करें तो सदियों से कश्मीर के अंदर वो चलता जा रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है वो थमसा गया है, क्योंकि अब अगर हम कारीगरों की बात करें तो कारीगर यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि न्यू जनरेशन की बात करते हैं तो न्यू जनरेशन इस पर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो है बहुत ही सब्र वाला काम है, बहुत ही गहराई से इस पर काम करना होता है। अब इनका भी यही कहना है, अगर गवर्नमेंट कुछ हेल्प करती है, कुछ स्कीम्स देती है, तो कहीं ना कहीं अगर हम न्यू जनरेशन की बात करें तो वो भी यहाँ पर आएंगे। इसी के साथ लेते हैं इजाजत, अल्लाह हाफिज। जम्मू कश्मीर हंदिस मौसमस मज ये महकमे मौसमियात पेशन गोई मुताबिक रात पर तब्दीली वुचन आई। यथ दौरान कईयान जायन पे मदनी इलाकन मज रुदलव तो बालई इलाकन मज वक्फ वक्फ शीन पेन जारी। तत आज दोपहर पत सयाती मुकाम गुलमर्ग मज ताज़ शीन पेन सत मौजूद सयाह सठई खुश वुचन आमद। ये जन सयाह तरफ खुशी हंद इजहार करान वन आव ये एक तरफ वादी कशीर कुदरती खूबसूरती सत माला माल तत दोयमि तरफ शीन पेन सत खूबसूरती मज मजीद इजाफ सपदमुत, यम सत सयाह सठई लुत्फ अंदोज सपदन। We are from Hyderabad. Yeah. It's very beautiful. So we have come for the year-end trip. Yeah. So today we are at Gulmarg, and today it's the first snowfall, as we heard from the locals, and it's a very good experience for us. Yeah, it's so lovely here. Come explore snowfall. It's all good. I want everyone to come. This is an experience. It's really magical and beautiful. Kashmir people are really sweet, and they are taking very good care of us, and the hospitality is really good, and there are really very good proper amenities provided for us. So it's really good. Yeah, and even the people over here are telling that this is the first snowfall of this 26. Yeah. Okay. So I'm really lucky to experience this. सर मेरा नाम श्रुति जैन है, हम पंजाब से आए हैं। ये नव वर्ष की पहली बर्फबारी में हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ऐसा मौसम आपको कहीं नहीं मिलेगा जो आपको कश्मीर में, गुलमर्ग में और ये ग्रामीण इलाकों में मिलेगा। मैं सब भारतवर्ष के लोगों से कहूँगी यहाँ जरूर आए, गर्मियों में नहीं सर्दियों में आए, जरूर आए। हाँ बस और सर्दियों में आए। सबसे मेरा नाम नेहा जैन। कैसा लगा कश्मीर? बहुत अल्टीमेट मौसम। आपको जब आओगे इसी मौसम में आना ही चाहिए यहाँ पे, एक बार मस्ट विजिट। टाप पर रहने वाला हूँ कश्मीर में। नए साल को बर्फ पड़ी है, हम सबको बहुत अच्छा लगा। हर गांव वाले, हर स्टेट वाले इधर आके एक बार चेक करिए। हैप्पी न्यू ईयर सबको। आप सब एक बार इधर आके स्टे करिए। महकमा मौसमियात की एन पेश गोई के मुताबिक वादी के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ अब मैदानी इलाकों में बर्फबारी होना शुरू हो गई है और काफ़ी तादाद में वादी कश्मीर के सयाहती मुकामात पर इस वक्त सयाह जो है वो आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वादी कश्मीर में इसी तरह का मौसम बना रहे ताकि वादी में सयाहत से जुड़े लोगों का रोजगार भी चल सके। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। फ्रूट मंडी सोपर वबस्त तजो तरफ सरकार मंग कर आम बाजरन मज नकली कुल दवाहन पे रोट लागनस हवाले गन संजीद कदम तुलने yin युद्ध जन बाग वालन नुकसान सपदे। ये जन तमो वोन युद्ध वरी 2050 मज मौसमी खराबी सत मेव सनत सत वबस्त लूकन सटा नुकसान सपुद। ताहम तिमन वमेद ज नवेस वरियस दौरान सरकार तरफ अमे हवाले संजीद कदम तुलने युद्ध जन यह सनत मजीद मुतासर सपदे। ताकि जो हमारा 2025 में जो मुश्किलात हुए, खासकर मैं फ्रूट इंडस्ट्री की बात कहूँगा कि हमारा जो डिज़ास्टर हुआ जम्मू में ज़्यादा, जिसमें माली नुकसान हुआ जाने, उसके साथ साथ में जो हमारा नेशनल हाईवे हिट हुआ उसमें हार्टिकल्चर सेक्टर को बहुत सारे नुकसान उठाने पड़े। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि ये सीज़न 2026 अच्छा रहे, ताकि क्योंकि हार्टिकल्चर सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है कश्मीर वैली, जम्मू कश्मीर स्टेट में करीबन 70% लोग इससे वाबस्ते हैं और अल्लाह चाहे कि इसको बरकत दे और ये हमारा हार्टिकल्चर सेक्टर सही रहे। दिक्कत ये बोली कि गैर मैरी पेस्टिसाइड से फर्टिलाइजर जो कई सालों से मार्केट में आ रहा था, जिससे हमारी इस फ्रूट इंडस्ट्री को बहुत सारे नुकसान उठाने पड़े। लेकिन मैं आपको वसूख के साथ कहता हूँ कि 2-3 सालों से कंटिन्यूसली जो गवर्नमेंट इस पर हमने आवाज़ उठाई कि गैर मैरी पेस्टिसाइड से फर्टिलाइजर मार्केट में था, जिससे हमारे सेबों को काफ़ी सारे नुकसान उठाने पड़े। लेकिन मुझे अभी भी जो नया साल हमारा, मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि गैर मैरी पेस्टिसाइड मार्केट में नहीं आना चाहिए, गैर मैरी फर्टिलाइजर मार्केट में नहीं आना है, क्योंकि एक इनोसेंट ग्रोवर होता है जिसको इलिटरेट, जिसको पता नहीं होता, और गवर्नमेंट वो इस पर सख्ती से निपटना है। और मैं साथ साथ में आपके माध्यम से
लोगों से भी अपील करूंगा किसी भी सूरत में डुप्लीकेट पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ना करें। अगर कोई इनको देता है तो पुलिस को इन्फॉर्म करें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। देखा कि अभी हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर वो खुद हार्टिकल्चर सेक्टर से वाबस्ता है, उनके साथ हमारी बार बार मीटिंग, कल भी मेरी उसके साथ मीटिंग थी, और वो इस बारे में डिपार्टमेंट को हिदायत दे रहे हैं कि किसी भी सूरत में डुप्लीकेट दवाई मार्केट में नहीं आना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी सारे नुकसान जो इस फ्रूट इंडस्ट्री को उठाने पड़ रहे हैं। लेकिन इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का एक फ़र्ज बन जाता है कि वो स्ट्रिक्ट तरीके से देखें कि किस तरह गलत जो अब मार्केट में आता है ये नहीं आना चाहिए, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये फ्रूट इंडस्ट्री फले और फूले। और इसमें क्योंकि आप देखें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं इस टाइम हमारी फ्रूट इंडस्ट्री, लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है। अगर बच्चे पढ़े लिखे आते हैं तो उनको रोज़गार नहीं, तो इसी सेक्टर में आ जाते हैं। और इस सेक्टर के साथ एक इबादत की तरह हर किसी को काम करना चाहिए ताकि हमारा इस सेक्टर आगे बर्बादी की तरफ ना। तो नाजरीन, इज्जत खबरनामा तुम रोज़ियो गुलिस्तान न्यूज़ वुचान, मे दियो इजाज़त, खुदा सवाल।